Hello students, this is जसविंदर सिंह धावन ऑन स्वॉट ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी बच्चों को डर लगता है। इनफैक्ट ये हमने 9th-10th में डिफरेंट बोर्ड्स के नीचे पढ़ा भी होता है। बट एवरी टाइम जब भी मैंने देखा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोल स्टार्ट करना है, तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। बट इनफैक्ट दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। So I'm trying to make it more easier for you. So without wasting your time, let's start the topic. तो what is mole concept? Mole concept में हम बच्चों देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल क्या चीज है। तो मोल बच्चों एक क्वांटिटी है जिसको हम डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए what is mole? You can say mole represents 6.022 10 raised to power 23 particles, and the number of 6.023 is also known as the Avogadro number. So that is denoted by the n, and it is also defined as the amount of substance that contains the same number in the form of entities. Now what are these entities? Atoms, molecules, ion or other particles. For example, you can say carbon. The atomic mass of carbon is 12, which is taken as 12 gram or 0.0012 kg. तो that means कि जो कार्बन का जो अगर हम ले 12 ग्राम हमने क्या लिया इसका एटॉमिक मास। तो 12 ग्राम of carbon is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 atoms. So 1 mole of atom is equal to 6.022 or 23 into 10 raised to power 23 atoms, which is also equal to gram atomic mass. जैसे अभी आपने देखा मैंने कार्बन का निकाला था, तो that means कि जो एटॉमिक मास है ग्राम एटॉमिक मास, that is equal to the Avogadro number. So let's move. 1 mole of molecule is also equal to 6.22 10 raised to power 23 molecules, which could be also be expressed in the form of gram molecular mass. Mass of 6.022 10 raised to power 23 also defies one more thing. What is that? That is the formula unit. I'm giving you one example here. You can say Na2SO4 सोडियम सल्फेट हमारे पास एक कंपाउंड है। इसका अगर हम मास निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 23 into 2 which comes out to be 46 प्लस सल्फर का जो मास होगा 32 प्लस 16 into 4 अगर हम इसका लें ऑक्सीजन का, it comes out to be 64. Now we add up all these, it comes out to be 46, then 64, then 32. तो ये आ गया जी आपका 2, यहाँ पे 10, 142. So that means this 142 gram of Na2SO4, what does it defy? This is equal to 1. So mole could be expressed in the form of molecules, atom or formula unit. अब मैं आपको इसकी एक समरी दे रहा हूं। अभी जो हमने मोल पढ़ा तो उसकी एक बच्चों समरी है, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है। जैसे हम देखते हैं कि 1 मोल
तो 1 मोल डिफाई इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 particles is also equal to 22.4 liters at NTP or STP. Now what does it mean? Standard temperature pressure और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. किसी किसी बुक्स में 22.7 भी लिखा है, वो भी गलत नहीं है, बट जो प्रीवियस बुक्स हैं जो हम आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर 22.4 लीटर्स है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, तो उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे. तो दिस इज, अगर हम ऑक्सीजन एटम देखें तो 1 मोल, जैसे मैंने आपको बोला किसके अंदर, एटम के अंदर भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देख सकते हैं, और साथ ही हमने फार्मूला यूनिट के अंदर भी देखा. तो इसमें देखिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम which is equal to 6.022 10 raised to power 23 atoms, and 1 mole of oxygen molecule because oxygen exists as a O2. तो इसको क्या आ जाएंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 10 raised to power 23 molecules. It could also be expressed as the 1 gram atom because the carbon का इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 ग्राम. So that is equal to 12 gram of carbon, and the atomic mass of sodium is 23 gram. So it could be expressed as a 23 gram of sodium. It could be also expressed as the 18 gram of water, because जो पानी का जो हम भार देखते हैं, जो इसका एटॉमिक मोलर मास है वाटर का, वो कितना जाएगा, 16.2, which is equal to 18 gram. Same way, it could also express the carbon dioxide, because the molar mass of carbon dioxide is 44 gram, which also defines the 1 mole. Similarly, I can give you the more example of NaCl and calcium carbonate. Then we have certain numericals based on this concept that I am going to express. The number of atoms of the following samples of substances, largest strength 127 gram of iodine, then 48 gram of magnesium, then 71 gram of chlorine and the 4 gram of hydrogen. अब ये पूछ रहा है कि किसके अंदर ज्यादा होंगे, तो उसके लिए you must be knowing the atomic mass of each and every element. तो बच्चों इसके लिए आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. You must be knowing the atomic number as well as the masses of the different elements. तो उसके लिए हम देखिए हमारे पास जो आयोडीन है, इसका अगर हमने एटॉमिक मास लें तो बच्चों ये जो एटॉमिक मास है इसका आयोडीन का होता है 127, और मैग्नीशियम का होता है जिसका सिंबल है Mg, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना है, 24. और क्लोरीन का अगर हम लें तो इसका आपको कितना बनता है, 35.5. और अगर हम हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन का बच्चों बनता है 1 ग्राम. अब लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल कि 1 मोल रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, यू कैन से 6.023 10 raised to power 23, and because 127 gram is the atomic mass of iodine, so that means कि it comes out to be 1 mole of iodine. I hope it is clear. Second, 1 mole of magnesium, the weight is 24 gram. So that means also because we have 48 gram, so 48 gram defies how much? That is the 2 moles of magnesium. अब हम आगे चलते हैं कि 1 mole of chlorine atom, which is equal to 6.023 10 raised to power 23 atoms. So that means because we have 71, so that means we have 2 moles, or 2 into 6.023 10 raised to power 23. तो इसमें मोल्स कितने बने आपके, 2 मोल बन गए. अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है which is equal to 1 ग्राम, अब हमारे पास 4 into 6.023 10 raised to power 23, so that means we have 4 moles of hydrogen atom. So fourth wala is the right answer. I hope it is clear. So let's move to the next question. Now we have matched the columns. Nowadays competition में बोर्ड लेवल पे आपको मैच द कॉलम भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहाँ देखिए 88 ग्राम ऑफ CO2.
अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन इसका कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो इट कम्स आउट टू बी 12 प्लस 32, इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। तो हमारे पास कितना है 88 ग्राम। तो दैट मीन्स कि जो ए वाला है इसका आंसर क्या होगा 2 मोल्स। अब सेकंड केस पे चलते हैं। इसमें देखिए 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स गिवन है, किसके हैं वाटर के, और हमें पता है कि 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो तो इज इक्वल टू 1 मोल। तो दैट मीन्स कि जो बी है इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ वाला। अब चलते हैं 5.6 लीटर्स ऑफ O2। अभी आपको बताया कि 22.4 लीटर्स एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो 5.6 का कितना होगा, that comes out to be 0.25 moles. And the last one is 96 gram of oxygen. 22.4 अगर लीटर्स हैं, 22.4 लीटर्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो बच्चों दिस इज इक्वल टू 1 मोल। और हमारे पास कितना है 96 ग्राम, 96 ग्राम है। तो 96 ग्राम हम इसमें देखेंगे हमारे पास, बिकॉज 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मोल, और बिकॉज द वेट, इसका जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो इसको अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी 4 मोल्स विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 96। तो इसका जो जाएगा वो आपका 4 मोल आ जाएगा, बिकॉज 22.4 इज इक्वल टू 1 मोल और 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो और 96 ग्राम इज इक्वल टू 4 मोल्स। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स present in 11.2 liters of oxygen at NTP. Now what is this NTP? Again it is the normal temperature pressure. इसमें जो आप टेम्परेचर लेंगे कितना लेंगे 0 डिग्री और 273 केल्विन, प्रेशर कितना लेंगे 1 एटमॉस्फेयर या 0.987 बार। उसी वजह से कई कई बुक्स में 22.7 लीटर्स लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो अब देखिए इसका अंदर कैसे हम चलेंगे। हमारा इसमें देखें तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इसमें मॉलिक्यूल्स देखें बच्चों तो इसमें कितने निकलेंगे आपके 6.023 इंटू 10⁻23, और एक में कितने निकलेंगे नीचे आ जाएगा 22.4। ही इज आस्किंग फॉर कितने में 11.2 में। तो ये आपका 2 में गया तो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एंड दिस इज योर आंसर। अब जो ऑक्सीजन है इसमें एक और नया वर्ड यूज कर रहा हूं एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज दिस एटॉमिसिटी? यू कैन से एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसकी जो एटॉमिसिटी कितनी है 2। तो यू मल्टीप्लाई दिस 3.01 into 10⁻23, you get the atoms, and your final answer should be 6.023 10⁻23 atoms. So this is all from my side. I hope आपको समझ आया होगा। इसी में कड़ी में हम लोग और आगे मिलेंगे। This is all from my side. That was Jaswinder Singh Dhawan on SWOT platform. Okay, bye. Goodbye.